Welcome, aspirants. Welcome to Shriram IAS YT channel to this series 1 PYQ a day for your mains 2025. So, those of you who are writing mains 2025 this year, so a lot of writing practice is required to gain maximum advantage in mains, and that is why this 1 PYQ a day series was launched. So, today is the day of the society, and that is why I am here with a previous year question that is of मेंस 2024 जीएस पेपर 1 सोसाइटी क्वेश्चन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट ग्लोबलाइजेशन हैज increased the urban migration by skilled young unmarried women from various classes. This is the definitive statement जो कि as a matter of fact वो आपसे बता रहे हैं। The examiner is telling you that globalization has increased urban migration. What migration? Urban migration by skilled young and unmarried. आपको जो क्वालिटीज हैं जो वुमन दोज हु आर माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज उनके बारे में बता रहे हैं। दे आर स्किल्ड, दे आर यंग, दे आर अनमैरिड फ्रॉम वेरियस क्लासेस। दिस इज द डिफिनेटिव स्टेटमेंट जो उन्होंने दे दिया। अब सवाल यहां से आपका शुरू होता है जो अगला सेंटेंस है, एंड दैट इज हाउ हैज दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप्स विद देयर फैमिली, to be answered in 250 words and 15 marker question. So this is the beauty of UPSC also and the nature of the Indian society questions, because they are what you see on the ground. कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो आप चेंजेस, चैलेंजेस, सिचुएशन, रियलिटी को देखते हो वही आपका एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है। सो पहला उन्होंने डेफिनेटिव स्टेटमेंट दे दिया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अर्बन माइग्रेशन हो रहा है यंग लड़कियों का जो कि यंग है, स्किल्ड है, एम्प्लॉयड है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट इट इंप्लाइज, एंड दे आर अनमैरिड। जो कोर क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ दिस ट्रेंड इंपैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देयर रिलेशनशिप विद द फैमिली। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे? क्या क्वालिटीज होंगी आपके आंसर में? आपका जो आंसर होगा वो इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कंसाइज होना चाहिए। तो 250 वर्ड्स जो वर्ड लिमिट है उसी के अंदर आपको आंसर राइटिंग करनी है। बट कंपेयर टू 150 वर्ड जो आंसर्स होते हैं, 250 वर्ड्स में यू हैव मोर बिट to write more. You can expand on the question, and that gives you an added advantage that the explanation part can become more comprehensive. तो इसका जो इंट्रोडक्शन होगा कैसे करोगे आप? सवाल को समझना बहुत जरूरी है। many of the aspirants, this is the problem that they have. They don't understand the demand of the question and they start writing what they know. You have to write what they're asking, and they're asking what? Not globalization, not urban migration per se. They are asking about the personal freedom and the relationship with the family of these young girls who are skilled, who are young, who are unmarried. वो ये सवाल पूछ रहे हैं। तो जो लार्जर पिक्चर है जो आपको पहले डेफिनेटिव स्टेटमेंट दिया है, यू कैन एक्सपैंड ऑन इट एंड यू कैन टॉक अबाउट हाउ ग्लोबलाइजेशन इन ए वे। आप ये जो डेफिनेटिव स्टेटमेंट है इसको एक्सपैंड कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन इंट्रोडक्शन में कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने, how globalization has in a way led to more urban migration by young, unmarried and skilled women cutting across socio-economic strata of the Indian society, which has significantly impacted their personal life choices, personal agency, freedom and their relationship with the family. This is a very generic introduction. या फिर आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो उसमें कि कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है, जो अर्बन माइग्रेशन, द पुल फैक्टर्स ऑफ द अर्बन माइग्रेशन which are there in cities like Mumbai, cities like Bengaluru, city like Delhi also, they are pulling a lot of young girls into, because of their educational facilities, because of their infrastructural benefits, because of their cosmopolitan nature, because of employment opportunities. ये आप बात कर सकते हो। पुल फैक्टर्स में भी आप इसके साथ शुरुआत
कर सकते हो. Pull factor of migration you can push, and it will be aligned with what? Globalization. That is how you can start this answer as well. Both ways it can work. आगे आप क्या लिखोगे? थोड़ा सा आपने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन डिफिनीशन भी पुश कर सकते हो, बट उसमें होगा क्या कि 250 वर्ड लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए. जो आपका मेन आंसर है, इंट्रोडक्शन तो हमेशा शॉर्ट और क्रिप्स होना चाहिए. दैट इज द फेस ऑफ योर आंसर. जो मेन बॉडी स्टार्ट होगी जब आप बात करना शुरू करोगे, जो ट्रेंड है कैसे ये इंपैक्ट कर रहा है किसको? पर्सनल फ्रीडम को. हम शुरुआत करेंगे बॉडी 1 से, पार्ट 1, एंड दैट इज पर्सनल फ्रीडम. यहां बात समझ में आई? व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द पुल फैक्टर्स ऑफ दीज मेगापोलिसेस, big cities, a lot of young girls from Indian small towns, villages, they are coming to these big urban centers, जो कि पुल फैक्टर्स हमने देखे अभी. तो फ्रीडम पे क्या असर पड़ेगा उसका? These are things which are very contemporary. These are things which are happening in front of our eyes. You have to just have a proper gauge to see what is happening. That is the beauty of sociology. That is the beauty of when you study Indian society. So these young girls, when they come to urban areas, now for the first time, they are moving beyond, जैसे हम कहते हैं, चार दीवारी of their home, their houses. So now they have more freedom. They have more cultural freedom vis-a-vis their food choices, vis-a-vis their socialization, vis-a-vis their clothing preferences, vis-a-vis their access to entertainment. ये सारी चीजें होती हैं जैसे ही आप अर्बन स्पेस में आते हो. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अर्बन कल्चर है इंडिया का, वो भी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हुआ है उस पर भी. और इंडिया में जो देखो आप, ग्लोबलाइजेशन लेड जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है प्राइमरली, तो आईटी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये जो एरियाज हैं, they demand a lot of young and skilled workers. So the women are meeting, or they have arose in part to meet this challenge. एंड जब वो आते हैं अर्बन एरियाज में, तो कल्चरल फ्रीडम उनको मिलती है जो अभी तक उनको घर में डिनाई की गई थी. दे ऑल्सो कम आउट ऑफ द पैट्रियार्कल सेटअप विद इन द families. The parental expectations are now very limited because of they are living alone. They are living in shared households. Flat लेके rent पे रहते. So now they have more freedom, more social mobility. The opportunity for the social mobility is there. इसके साथ साथ उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिलती है. कैसे? बिकॉज नाउ दे आर अर्निंग. तो यंग गर्ल from a small town, she is living in Pune, so she is earning now in an IT company. She is unmarried, she is skilled, so she has now financial autonomy. She don't have to look to her parents all the time. तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, सोशल मोबिलिटी के ज्यादा वेन्यूज बनेंगे, कल्चरल फ्रीडम मिलेगी. दे कैन स्टे लेट at night also. They can socialize in parties, in clubs, for example. They can travel freely. तो ये जो सारी फ्रीडम है जो पहले घर में उनको अलाउ नहीं थी, वो अब मिल जाएगी. फ्रीडम जो एजेंसी है प्राइमरली, वो उनको मिलेगी. They have now more agency to eat whatever they like, to drink, to eat, to wear clothes which would be otherwise considered inappropriate in family settings. They can now wear those clothes. So more empowerment in sort of women, girls will take place. ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ फ्रीडम पे. नेगेटिव क्या होगा? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है क्या कि ट्रेंड कैसे इम्पैक्ट करेगा पर्सनल फ्रीडम पे. तो पर्सनल फ्रीडम में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगे. क्यों? क्योंकि जो अर्बन एरियाज है वहां क्राइम्स भी होते हैं. यस, देयर आर क्राइम्स इन अर्बन एरियाज. There are glass ceilings. There are very few sectors in where the women are allowed to climb the ladder within the organization. There are very few areas where they are allowed to jump into the ladder. तो ग्लास सीलिंग भी है. क्राइम्स की सिचुएशन भी है. जो ट्रांसपोर्टेशन है अर्बन एरियाज में, वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता. निर्भया केस कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था.
अभी जो आरजी मेडिकल केस कलकत्ता में हुआ है और रेप केस वो कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ, मेट्रोपोलिस में हुआ है। तो फ्रीडम के ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसमें आप थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, बट नेट अगर आप बात करो, नेट रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा लड़कियों की फ्रीडम के लिए। अब आगे आपसे पूछ रहे हैं, ये तो पर्सनल फ्रीडम पे हुआ। सवाल समझना, कंटेक्स्ट समझना, ग्लोबलाइजेशन पे सवाल नहीं है, ना ही अर्बन माइग्रेशन पे सवाल है। सवाल है इन यंग लड़कियों के ऊपर कि हाउ दे आर reacting in a way, how structural changes are taking place because of this migration patterns, these migration patterns. तो पर्सनल फ्रीडम पे ये इंपैक्ट हमें दिखाई देता है। दे विल डिले मैरिज, मैरिज को वो डिले कर देंगे। दे आर मोर फ्री नाउ टू परस्यू रोमांटिक इंटरेस्ट, तो लिव इन रिलेशनशिप विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैरिज डिले होगी, लिव इन रिलेशंस और रोमांटिक जो अदर फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस हैं वो डेवलप होंगे, डेटिंग जो कल्चर है वो डेवलप होगा। और इंडिया में जो लव रेवोल्यूशन चल रहा है इस समय, उसको इम्पेटस यहाँ पे मिलेगा। मोर एंड मोर यंग पीपल आर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर विलिंग टू एक्सप्लोर, they are willing to explore, they are willing to commit mistakes and learn and evolve. So in a way this is what will happen. They will become more empowered, they will question the traditional values, they will reject the paternalistic or patriarchal control of their over their life choices. Some girls, some women, they cope also by लिमिटिंग देयर एजेंसी टू द पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। तो आगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस तरह से चेंजेस यहाँ पे जो पर्सनल फ्रीडम है उस पर दिखाई देगा हमें। और जो कास्ट का नोशन है इंडोगेमी का, वो भी यहां से चैलेंज होता है। जो इंटर रिलीजियस रिलेशंस होते हैं वो भी यहां पे डेवलप होंगे। अब हमारा आता है बॉडी 2, पार्ट 2 ऑफ आवर आंसर। तो इंट्रोडक्शन में और इसमें पार्ट 1 में अराउंड 150 वर्ड्स और 170 वर्ड्स इट विल बी कंज्यूम्ड। 150 वर्ड्स फिर भी आप मान के चलिए कंज्यूम हो जाएगा। नाउ आगे वो पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है फैमिली के साथ उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जस्ट डिप्लॉय योर कॉमन सेंस एंड थिंक। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस डिप्लॉय करना है सोसाइटी वाले क्वेश्चंस में और सोचना है कि कैसे ये जो फ्रीडम उनको मिली है वो इंपैक्ट करेगा फैमिली के साथ रिलेशनशिप को। तो कॉमन सेंस विल टेल यू द मोमेंट ए गर्ल who has been conditioned, who has been socialized, who has been trained, who has been educated from the very beginning in the family to be more conformist. Now she is exercising her freedom. So she will be seen as what? Rebellious, moral deviation. तो फैमिली के साथ यहां पे उनको क्या होता है? ड्यूल, इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। फैमिली आज भी उसी कल्चरल जो पैराडाइम है उसमें ऑपरेट कर रही है, बट जो लड़की है, जो गर्ल है, शी हैज मूव्ड आउट ऑफ दैट कल्चरल पैराडाइम। पैराडाइम क्या है कल्चरल? कि लड़की को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। शी शुड एक्सरसाइज कॉजन बिफोर टॉकिंग टू न्यू फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली मेल फ्रेंड्स, मेल acquaintances, एक्सेट्रा। शी शुड लिमिट हर मूवमेंट बाय 8 बजे तक रात को उसको हॉस्टल में आ जाना चाहिए। दे द पेरेंट्स विल बी वेरी कंसर्न, सो व्हाट दे विल डू, लाइक दे हैव put restrictions inside the char divari of the home. Now what they will do, they will go for digital snooping, तो नहीं कहेंगे, but surveillance obviously होगा। तो डिजिटल टूल अब अवेलेबल हैं। देयर आर पेरेंट्स हु डिमांड कि आप अपनी गूगल में, व्हाट्सएप में लाइव लोकेशन शेयर करके रखो। देयर आर पेरेंट्स हु डिमांड इट। तो डिजिटल सर्वेलांस होगा, वीडियो कॉल होगा, बार बार ऑडियो कॉल होगा, वीडियो कॉल होगा, लाइव लोकेशन मांगी जाएगी, ताकि जो सर्वेलांस घर में हो रहा था पहले फेस टू फेस, अब वो डिजिटल टूल के माध्यम से किया जा सके। समटाइम्स इट विल बी पुश फॉरवर्ड कि फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, लड़की के लिए जरूरी है। कई बार जो एक नेगेटिव इमोशंस आते रहते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे लड़कियों को कहा जाता है कि जो इंडोगैमी का नोशन है उसको ब्रीच नहीं करना। इन इंडिया these days there are the parents have no problem by and large। अगर आप देखें अर्बन इंडिया में ये एक फिनोमेना इमर्ज हो रहा है कि they have very little issues with their wards, their children falling in love, as long as वो सेम जाति में हो रहा हो, सेम धर्म में हो रहा हो।
उनको इस बात से समस्या नहीं कि यू आर फॉलिंग इन लव, उनसे उनको इस बात से समस्या है दैट यू आर फॉलिंग इन लव विद सम अदर कास्ट पर्सन और सम अदर रिलीजियस ग्रुप member. This is the problem that they are having. So they will push again and again for this notion of the endogamy, particularly the caste endogamy, कि अपनी जात में ही शादी करना. तो ड्यूल एक्सपेक्टेशंस हैं. एक तरफ अर्बन सेटअप है, कॉस्मोपॉलिटन है, लिबरल है, फ्रीडम गिविंग है, और दूसरी तरफ पेरेंटल जो एक्सपेक्टेशंस है वो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वहां पे जो वर्ल्ड व्यू है वो डोमिनेंट है. फैमिली का जो लव, इमोशन, कंपैशन वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे बहुत तेजी से दिमाग के ऊपर काम करता है. सो ड्यूल एक्सपेक्टेशंस होती हैं. दे हैव टू नेविगेट द गर्ल्स, दे हैव टू नेविगेट दीज टू कंपीटिंग नोशंस. ये होता है प्राइमरली फैमिली के साथ रिलेशंस में. नाउ दे आर बिकमिंग मोर empowered, more financially independent. So what they will gain? They will gain agency. They will gain power. They will have more influence in family matters. ये होगा, ये शुरुआत वहां पे होगी. आगे अगर आप इसमें देखो कुछ पॉजिटिव इसके बेनिफिट भी होते हैं फैमिली के साथ रिलेशंस में. अभी तो हमने सिर्फ एक तरह से क्रिटिकली इसको एग्जामाइन कर दिया कि भाई ये चैलेंजेस आएंगे. कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं. क्या होती हैं भाई? ये लड़कियां जो कमाती हैं पैसे, पैसे घर भेजती हैं, अपने भाई बहनों को पढ़ाती हैं. दे आर टीचिंग और एजुकेटिंग और हेल्पिंग देम their siblings with the money resources. They send remittances, they bring newer cultural notions, they bring pride to the family क्योंकि they are earning. Sometimes they get fame also when they get selected in UPSC or other such examinations. तो ये सारी चीजें होती हैं पॉजिटिवली. जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ उसको ट्रांसफॉर्म वो कर देता है. तो टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है, इमेंस पोटेंशियल भी है और पॉसिबिलिटीज भी है. ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली के साथ. तो पार्ट 1 में हमने बात की कैसे पर्सनल फ्रीडम को इंपैक्ट करेगा. उसमें हमने प्राइमरली देखा कि पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, कुछ उसमें नेगेटिव हमने देखा. देन हमने फैमिली के साथ बात की. प्राइमरली हमने इसको क्रिटिकली पहले देखा, बाद में हमने इसमें पॉइंट ऐड किया कि व्हाट पॉजिटिव चेंजेस आर देयर व्हेन द यंग गर्ल्स अर्बन उनका माइग्रेशन होता है. Now, this question is complete in a way because you have systematically addressed the demand of the question. Now, 250 words में आपको लिखना है. By this time, you are what? 230 words, 220, 225, 230 words around. और इसमें आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में नहीं लिखना है, इसमें आपको अर्बन माइग्रेशन के बारे में नहीं लिखना, क्योंकि सवाल ही वो नहीं है. सवाल है कि लड़कियों के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा. यहां से सवाल आपका शुरू होता है. ये तो डेफिनेटिव स्टेटमेंट उन्होंने दिया है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होकर वो ग्लोबलाइजेशन लिखने लगते हैं, अर्बन माइग्रेशन. नो, डोंट हैव टू डू दैट. जस्ट राइट व्हाट दे आर आस्किंग यू टू राइट. उसी के बेसिस पे नंबर मिलेगा. बाकी कॉपी भर के आ जाओ, कुछ नहीं होना. नाउ लास्ट पार्ट इज योर कंक्लूजन. कंक्लूजन इज नॉट समरी. हाउ वुड यू राइट द कंक्लूजन हेयर? तो एज यू कैन सी हेयर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जो इम्पैक्ट है ये अर्बन माइग्रेशन का, ग्लोबलाइजेशन लेड अर्बन माइग्रेशन का ऑफ दीज यंग गर्ल्स, इसका जो इम्पैक्ट है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एंड फॉर ऑल क्लासेस. यहां पे लिखा है वेरियस क्लासेस. तो जो अपर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उसके एक्सपेक्टेशंस अलग है. द बिहेवियर ऑफ द गर्ल्स आर डिफरेंट. एंड दिस इज, रिमेंबर, दिस इज एन एरा ऑफ व्हाट? सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का ये एरा है. तो जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है और फुलफुली पॉजिटिव भी नहीं है, फुलफुली नेगेटिव भी नहीं. एंड ये जो कंटिन्यूअस टसल चल रही है बिटवीन द फ्रीडम्स एंड द ट्रेडिशनल नॉर्म्स, द गर्ल्स, इंडियन यंग गर्ल्स, एजुकेटेड, स्किल्ड, अनमैरिड एंड यंग, दे आर नेविगेटिंग दीज चैलेंजेस. इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर दोगे. कॉम्प्लेक्स ये एक मामला है और इसमें हम बात करेंगे कि जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अक्रॉस क्लासेस के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है इन टाइम एंड स्पेस. एंड दिस duality or the contradiction between these two competing systems, one is the traditional norms of the family and the second is the benefits of the modernity or modernization. They are competing with each other inside our young girls head and heart. और इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर दो.
सवाल को समझना जरूरी है, उसमें जो डिमांड है वो क्या पूछ रहे हैं वो समझना जरूरी है। जस्ट इन सोसाइटी वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाना है। आपने नहीं देखा कि लड़कियां घर से बाहर जाती हैं तो हाउ ट्रांसफॉर्मेशन इट ब्रिंग्स। इफ यू बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन यू मस्ट हैव सीन इट कि हाउ सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इट ब्रिंग्स। तो बस उसी को एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्साइज ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें लिख देना है विथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, द बॉडी पार्ट्स एंड कंक्लूजन। आंसर इज कंप्लीट। और इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। 240 250 वर्ड्स में ब्यूटीफुल आंसर इसमें आप लिख सकते हो। कंसाइज ही लिखना, ब्रेविटी बहुत जरूरी है। अगर वर्ड लिमिट ब्रीच करोगे पेपर कंप्लीट नहीं होगा और नंबर में नहीं मिलेगा, पेनाल्टी लगेगी अलग से। ओके, so this was the previous year question for Indian Society of 2024. You can join me on my Telegram channel as well to remain in connect. I'll meet you again when again the turn comes up. Thank you for giving me your time.